So spring force we have seen F equal to minus k into delta x, where negative sign indicates that both elongation or compression and spring force are in opposite direction to each other. So last class we have seen these things and also we have discussed about the spring constant. If you remove the proportionality, then a proportionality constant will come in case of spring force, and that spring force constant is called your K. So K tells us how a good spring you can have. I mean, from the value of K, you can find out whether a spring is good quality or a bad quality. So K tells you how your elongation and compression will taken place with the help of value of K. See, today we will see. So let us tell that K equal to FSP by delta x. If you keep K this side, then this delta x will go to that side and it will be divided with your spring force. Okay. So can you tell me here, if your delta x increases, then ultimately your K will decrease. I mean, if your elongation or compression increases, then the value of K will be decreases. So for a good quality of spring, you will always be wanting that your K value must be greater. I mean, you need a good quality of K. So for this purpose, what should be the elongation and compression? It should be less. So as long as your elongation and compression is less, you must tell that you have a good spring. I mean, your value of spring constant is a very good quality. By condition, comparing the condition is your spring force will remain constant. So from here, we can tell you that your spring constant K is inversely proportional to delta x. मतलब डेल्टा एक्स अगर तुम्हारा डिक्रीज होता है तो K तुम्हारा इंक्रीज होता जाएगा, या फिर मान लो कि अगर तुम्हारा एलोंगेशन इंक्रीज हो रहा है तो K तुम्हारा डिक्रीज होगा। चलो इतने में लेके एक छोटा सा सवाल करते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लो। ओके, सो मेरे पास एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है तुम्हें K। मान लो ये स्प्रिंग का लेंथ है। ओके, नाउ कट दिस स्प्रिंग, कट द स्प्रिंग into two equal parts, then find out new spring constant for so here there is a beautiful question. They have given us a spring whose spring constant is K and the spring has a length of L. They are asking that cut the spring into equal to parts. After that your spring will become two spring. Okay, so now what is the spring constant for each part? Okay, so first write the question, then we will solve it. Write the question. So here a spring is given with length L. एक स्प्रिंग दे दिया गया है तुम्हें जिसका लेंथ L है और जिसका तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अगर इसको मैं बीच में से काट दूं, बीच में से बराबर बीच से अगर काट दूंगा तो ये दो स्प्रिंग बन जाएगा अभी। तो वो बोल रहा है कि
दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल, मतलब क्या दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा, अगर अलग अलग हुआ तो कितना होगा, या फिर क्या ही रहेगा। बस यही चीज हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलो करते हैं। अच्छा चलो काट लेते हैं थोड़ा। तो अभी अगर ये स्प्रिंग को मैं दो यहां से बीच में से काट लिया तो ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट, ये हो गया तुम्हारा दूसरा पार्ट। चलो अगर टोटल लेंथ L है तो काटने के बाद एक एक पार्ट को कितना लेंथ रहेगा L/2, और ये भी बन जाएगा L/2, राइट? क्योंकि L/2 और L/2 को तुम मिला दो तो ये वापस L बन जाएगा ना, राइट? सो काटने के बाद एक एक का लेंथ हो गया तुम्हारा L/2। ओके, क्या हमें पता है कि ये जो तुम्हारा K होता है ये लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई मीन आप पिछले लेक्चर में पिछले पहला वाला जो टॉपिक था वहां में हमने देखे थे, पता है ना, कि ये हमारा लेंथ मतलब क्या एलोंगेशन और कंप्रेशन ही है ना, तो इसके साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर तुम्हारा लेंथ घटता है तो डेफिनेटली तुम्हारा K बढ़ेगा। तो काटने के बाद देखो लेंथ घट गया है ना, मतलब कम हो गया है, L से दिस वन बिकम L/2 और ये इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? तो मतलब K बढ़ जाएगा अभी, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं दिस K इज प्रोपोर्शनल टू L/2 ना, आई मीन ऐसा नहीं, सॉरी ऐसा मतलब जैसे कि दिस K इज प्रोपोर्शनल टू 1/L/2, राइट? अब ये दो ऊपर चला जाएगा ना, सो आई कैन राइट K इज प्रोपोर्शनल टू 2/L। मतलब अभी ये K और ये सीधा सीधा लिख रहे हैं ना, राइट? भी हो एक्चुअली चीज हुआ क्या, नीचे पहले केस में यहाँ पे थोड़ा कंपेयर कर L था, अब ये घट गया तो ऑब्वियसली ये चीज बढ़ जाएगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं समझा रहा हूँ, सिंपल ट्रिक है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस इसको उल्टा कर दो और वो हो जाएगा तुम्हारा K। मतलब अगर तुम्हारा लेंथ L से हो गया L/2 तो तुम्हारा K हो जाएगा K से 2K। मतलब ये जितना गुना कम होगा, ये जो नीचे में होगा ना, ये उसको रिवर्स कर दो, ये उतना टाइम ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो ये वाला पार्ट में अभी स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2K और ये वाला पार्ट में। ओके, इसको नोट करें। मतलब लेंथ आधा हो गया तुम्हारा तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। ओके, again I am repeating, if your length is halved then your spring constant is double. Okay, L becomes L/2, then your K becomes 2K. So each part will have a spring constant of 2K and 2K equal. Okay, you got it? Now we'll go for next part. Okay. So we have a spring whose length is L. And your spring constant is K. Cut the spring. Cut the spring into two parts such that the ratio is then find out nu K for each part. Okay. So here we have again a beautiful question. They have given us a spring whose spring constant is K having length L.
Again we are cutting this spring into two parts, but this time this is not cutting exactly half. Okay, this time they have given the ratio that this spring has to cut in the ratio of 3:5. So now what is the new spring constant for each part? So let us solve this problem. How we are going to solve this one? See, the length is given is okay, and this has to cut in the ratio of 3:2. तो एक एक पार्ट को, पहला पार्ट का लेंथ कितना होगा पता है? इन दोनों को मिला दो, 5 + 3 8 3l/8। और जो तुम्हारा दूसरा पार्ट होगा 5 + 3 8, नीचे 8 लिख लो, ऊपर 5। अब ये दोनों को मिला दो, ये दोनों मिलकर ऑटोमेटिक तुम्हारा l आ जाएगा। देखो, चाहो तो टेस्ट कर लो। होगा कि नहीं? इसको टेस्ट कर लो ना, इसको टेस्ट कर लो, ये l आएगा, दोनों को मिला लो। मतलब जब l को तुम 3:5 रेशियो में काटोगे, if you cut the spring in the ratio of 3:5, then the first part will have the length of 3/8, मतलब 3l/8, and the second part will have the length of 5l/8। अगर ये दोनों को मिला दो तो l हो जाएगा। देखो यहाँ से एलसीएम तुम्हारा निकलेगा 8, ऊपर हो गया 3l + 5l, वो हो जाएगा तुम्हारा 8l। 8l ऊपर है, नीचे 8 है, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा। ओके, बस हो गया काम। अगर पहला पार्ट का तुम्हारा लेंथ इतना है तो पहला पार्ट का के क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो पहला पार्ट का के हो जाएगा 8/3k, और दूसरा पार्ट का के हो जाएगा 8/3। ओके, दिस इज योर आंसर। जो अभी दोनों पार्ट बन गए तुम्हारा, यहाँ पे बना लो ये वाला पार्ट जिसका लेंथ था तुम्हारा कितना? ओके, दो स्प्रिंग हो गया ना कटने के बाद। तो ये वाला स्प्रिंग का लेंथ कितना था? 3/8। इसका कितना था? 5l/8। अच्छा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दो, लेंथ जितना रहेगा ना उसको उल्टा कर दो हमेशा, तो वो बन जाएगा k तुम्हारा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8k/3। ये भी 8k/3 है, थोड़ा ध्यान से लिखो इसको। ओके, सो दिस इज योर आंसर। चलो नोट कर लो इसे, जब स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो इस टाइप का और एक सवाल दे देता हूं, तुम कर लेना अपना। Set spring constant. Cut the spring into two parts in the ratio of then find out new spring constant for each part. Okay, so this kind of question already we have done. So this is a question for you, this is a homework for you. Note the question and do it on your own. Okay, so already you have given me the spring length L and K. Now you need to cut the spring into two parts such that its ratio will be 5:8. This is your 5:8. Then find out the new spring constant for each part. Note the question and do it on your own and check the answer. Okay, method very nicely I have told to you.
The method of solving this kind of problems already we have discussed here, so you can do this now. Okay, note it down. Okay, चलो ये सब बात तो हो गया, तुम्हारा स्प्रिंग को काटने की बात हो गया। अभी स्प्रिंग को जोड़ेंगे, मतलब दो अलग अलग स्प्रिंग होगा और उसको आपस में जोड़ेंगे हम। इसको हम बोलेंगे, ये जो टॉपिक अभी इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। मतलब अभी क्या हुआ था, थोड़ा ध्यान दो, एक सिंगल स्प्रिंग था, उसको काट के हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, राइट। अभी क्या होगा कि बहुत सारे स्प्रिंग होंगे, मान लो दो से, हम एग्जांपल तुम्हारा दो का ही है, तो दो स्प्रिंग हम लेंगे, ओके, उन दोनों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे और वापस देखेंगे कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का हालत क्या होगा, मतलब नया जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होगा। तो उस टाइप ऑफ टॉपिक को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके, चलो वो देखते हैं। तो अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब थोड़ा डेमो दे देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, तुम्हारे पास और एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। नाउ we need to combine these two. We need to combine, मतलब मिलाएंगे। We need to combine these two. दो अलग अलग स्प्रिंग को हम जोड़ के आपस में एक स्प्रिंग बनाएंगे। तो पहला वाला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था K1, दूसरा वाला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था K2। जब ये दोनों को हम मिला देंगे, ये एक सिंगल स्प्रिंग बन जाएगा, तब उसका नया स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या हो सकता है। अच्छा, ये सब डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो कॉम्बिनेशन वाला चीज होता है ना, ये दो टाइप के मेथड्स में होता है। एक को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा को बोलेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, चलो सीक्वेंस में देखते हैं। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग यू कैन राइट कैन बी ऑफ टू टाइप। ओके, जो पहला टाइप है वो है सीरीज टाइप, और जो दूसरा टाइप है वो हम बोलेंगे पैरेलल। दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। पहला सीरीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद पैरेलल। चलो मैं नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। पहले देखते हैं सीरीज टाइप कनेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन लिख लो ऑफ मान लो यहां पे कोई फिक्स दीवार है, मैंने पहला स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 उसको ऐसे, तो पहले स्प्रिंग जहां पे खत्म होता है और दूसरा स्प्रिंग जहां से शुरू होता है, वो पॉइंट को मैंने ऐसे कुछ ज्वाइन कर लिया। मान लो कुछ मेरे पास जुगाड़ है, मान लो वेल्डिंग वगैरह या फिर सोल्डरिंग वगैरह, मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा। ये मतलब ये कैसे ज्वाइन होगा वो हमारा स्कोप नहीं है, दैट इज इंजीनियरिंग। बट मान लो कि हमें इसको ज्वाइन करना है, तो ये वाला जो स्प्रिंग था इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है ना, ये तुम कितने तक मिला सकते हो, ये n तक जा सकता है। मतलब
n नंबर्स ऑफ स्प्रिंग ना, n नंबर्स ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे मैं लिख लूंगा n नंबर्स ना, n numbers of spring can be combined, can be combined in series. Okay, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके तुम n नंबर तक जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ तो हमारे पास उतना जगह नहीं है, तो हम 2 ही लेके एग्जाम्पल करेंगे उसका, लेकिन तुम चाहो तो n नंबर ऑफ स्प्रिंग को कंबाइन, और ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखो होता क्या है, इसे थोड़ा मिटा लो, से थोड़ा लिख लो, चाहो तो लिख लो, फिर ये जो नीचे वाला लाइन को मैं मिटा के थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। चलो क्या हुआ, मान लो यहाँ पे मैंने ब्लॉक लिया है, कुछ एक जो स्प्रिंग का दूसरा एंड है, यहाँ पे कोई भारी सा ब्लॉक लगा दिया और इसको यहाँ से मैंने खींच लिया, राइट, मैंने क्या किया, इसको खींच लिया, ओके, मैंने मतलब पुल कर लिया, ये ब्लॉक को ऐसे पकड़ा मैंने और पुल कर लिया, तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग में खींचा हुआ आ जाएगा इस तरफ, और ये पिन भी इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी आ जाएगा खींचा। मान लो ये जो बढ़ा, ये कुछ x1 डिस्टेंस आगे गया और ये वाला मान लो कुछ x2 डिस्टेंस। क्या मुझे कोई बता सकता है ये ओरिजिनल ब्लॉक खिंचाव से पहले, आई मीन पुल करने से पहले जहां पर था, पुल करने के बाद ये एक नया जगह पे आ गया है, तो ये वाला जो खिंचाव, क्या इसको मैं टोटल x बोल सकता हूं? मतलब ये जितना खींचा होगा, ये जितना खींचा होगा, ये दोनों को मिला के टोटल ये कितना खींचा हुआ होगा, राइट, आई मीन इसका एलोंगेशन जितना होगा, इसका एलोंगेशन जितना होगा, ये दोनों की एलोंगेशन को अगर तुम मिलाओगे तो ये टोटल ब्लॉक इसकी सेंटर पॉइंट से नए जगह पे x डिस्टेंस खींचा होगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? सो कैन आई राइट x इज x1 प्लस x2, सही भी है, क्योंकि ये जो टोटल x होगा, ये दोनों की वजह से जितना खींचा होगा, ये टोटल x इन दोनों का समेशन होगा। मुझे एक बात है, ये ब्लॉक पे मैंने जब पुल लगाया, आई मीन पुल का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, तो तभी तुम्हें पता है क्या, अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया होगा, और वो फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स, राइट, अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया होगा और वो फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा। ध्यान देने वाली बात ये है, क्या हम दोनों को अलग अलग स्प्रिंग फोर्स लगा रहे हैं? नहीं, हम एक ही फोर्स लगा रहे हैं, और जो इसकी वजह से जो स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों में सेम स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो यहां से थोड़ा एनालिसिस करते हैं। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, सबको पता है, अभी तक तो कहानी समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, Fsp = K × डेल्टा x, या फिर x मान लो ना, क्योंकि हमने यहाँ पे x लिया है तो उसको x ही मान लो, बढ़िया रहेगा। kx सिंबल पे कुछ रखा नहीं है, तुम कुछ भी मान सकते हो। अभी फिलहाल अभी के लिए माइनस साइन में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है, तुम्हें मैं पहले से ही बता दिया हूँ ये सब। नेगेटिव साइन का मतलब है कि x और स्प्रिंग फोर्स आपस में ऑपोजिट में। तुम देखो ना, यहाँ से x से ऐसे खींच रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स तो ये डायरेक्शन में होगा ना, स्प्रिंग फोर्स। देखो x का डायरेक्शन किधर है और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है। वैसे हम तो यहाँ से ड्राइंग से ही पता लगा ही रहे हैं ना, तो माइनस साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या यहाँ से x कैन आई राइट Fsp/K हो सकता है ना? अगर x को x साइड में रखूं तो ये k इधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
कंसीडर करते हैं, इसका कंसीडर करते हैं। ओके, क्या x की जगह मैं ये फॉर्मूला डाल सकता हूं, FSP अपॉन के इक्वल टू, चलो ये स्प्रिंग का बात करते हैं, ये स्प्रिंग का x1 कितना होगा, ये स्प्रिंग में कितना स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, उतना स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि दोनों में बराबर का स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा FSP अपॉन K1। क्यों? क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 प्लस x2 में भी उतना ही स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K2। और तुम्हें यहां से क्लियरली दिख रहा होगा कि तीनों में FSP बराबर है। और ये जो फाइनल इक्वेशन आया है, ये तुम्हारा कुछ इस तरह दिखेगा कि 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो इसे बॉक्स बना लो। मान लो तुम्हारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग है, मान लो तुम्हारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग है, तो ये फॉर्मूला जाएगा कहां तक, n तक जाएगा। ओके, ये चलता रहेगा n तक। हाँ, इसको नोट बना लो और सीरीज के लिए हमेशा फॉर्मूला याद रख लेना, 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k। ओके, ये है तुम्हारा सीरीज का। मान लो कभी एक से ज्यादा स्प्रिंग तुम्हें सीरीज में जोड़ना पड़ गया, तो उसका नया स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है। अगर दो स्प्रिंग है तो बहुत ही इजी है, इसका एक शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा ये फॉर्मूला का याद करने के, पर इतना नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ओके, चलो फिर देखते हैं दूसरा वाला कॉम्बिनेशन, पार्लर कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसका सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं। ओके, मैं बता दूं, अगर तुम्हारे पास कभी दो स्प्रिंग है और तुम्हें सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। अच्छा, सो कैन आई राइट 1/k इक्वल टू, ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा k1 into k2, और एलसीएम को इससे डिवाइड करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, ये तो तुम्हारा बन जाएगा k2 प्लस k। ओके, सो यहां से डायरेक्ट अगर तुम्हें k निकालना है तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो k1 into k2 by k1 प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला। इसको एक्चुअली इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। चाहे तो यहां से भी ई लिख लो या फिर शुरू से ही लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये जो दो स्प्रिंग या फिर तीन स्प्रिंग या फिर चार स्प्रिंग या फिर n नंबर ऑफ स्प्रिंग सीरीज में जुड़ने के बाद जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट आता है उसको तुम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो। मतलब k लिखो, उसके नीचे e लिखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। के ई का मतलब हो जाएगा तुम्हारा क्या, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर है यार, मतलब इंडिविजुअल उनका स्प्रिंग कांस्टेंट का जितना पावर था ये अकेला उतना पावर पोजेस करता है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ योर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, इक्विवेलेंट स्प्रिंग। चलो इसके ऊपर हल्का सा न्यूमेरिकल कर ले। न्यूमेरिकल कर लेते हैं दो स्प्रिंग कांस्टेंट लेके, ताकि तुम्हारा फंडामेंटल भी और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, चलो इसको थोड़ा नोट कर लो। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। दो स्प्रिंग लेते हैं, उसको सीरीज में डालते हैं। ओके, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का कुछ वैल्यू लेते हैं और उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो हियर वी हैव अ स्प्रिंग। मान लो इसका k दे दिया है तुमको 20 न्यूटन पर मीटर। ओके,
और तुम्हारे पास एक दूसरा स्प्रिंग है जिसका तुमने दे दिया मान लो कुछ दे दिया तुम्हें 30 न्यूटन। पूछ रहा है कॉम्बाइन इन सीरीज एंड फाइंड न्यू इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या है, क्या ये डालोगे 1/k इक्वल टू 1/k1, इसको k1 मान लो, इसको k2 मान लो, करोगे कर सकते हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन लंबा पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला डालूंगा। सो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, के के लिए k1 into k2 by k1 प्लस, चलो मल्टीप्लाई करो 20 into 30 डिवाइडेड बाय 50। क्यों? क्योंकि 20 प्लस 30 50 हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा 600 अपॉन 50, राइट। सो कितना होगा 12 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, अब ये दोनों को हम सीरीज में जोड़ दिए, मतलब दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया, राइट। इसको ही सीरीज बोलते हैं ना। तो इसका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट आया वो आ गया कितना 12 न्यूटन पर। कुछ चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जब स्प्रिंग को तुम सीरीज में जोड़ोगे, when you combine the spring in series, you can see here very clearly that your spring constant is reduced. स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कम होता है। You see here earlier the first spring constant has a value of 20 Newton per meter, and subsequently your second spring has a value of spring constant 30 Newton per meter. But after combining them in series connection, they have got a value of 12 Newton per meter, and you know that this 12 Newton is smaller than your 20 Newton and 30 Newton per meter, right? So whenever a question will be asked to you that if you combine 2 spring or 3 spring or 4 spring in series, then the value of k decreases or increases or remains same or anything else like this option if comes, you should always write that the value of k, or else you can say the value of spring constant is always decreases in case of series connection. Okay, note this problem, then we will go for the parallel combination. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये मिटाएंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड क्वाइट इजी। ये बहुत सा सिंपल है, और ये आगे जाके ना तुम्हारा कैपेसिटर, रेजिस्टर, बहुत सारे चीज में ये सब कॉम्बिनेशन वाला यूज होने वाला है, राइट। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां से तुमको फाउंडेशन मिल रहा है, बेस मिल रहा है, तो थोड़ा ध्यान दे दो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, चलो दो स्प्रिंग को अभी मैं पैरेलल कंबाइन करता हूं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां पे मैंने एक ब्लॉक डाल दिया। ओके, मान लो ये वाला स्प्रिंग है तुम्हारा, स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 और ये वाला का स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहां पे जो ब्लॉक मैंने डाला है, अब इसको मैं पुल दूंगा, मतलब खींचूंगा। यहां पे एक चीज तुम्हें नोटिस करना है कि ये वाला स्प्रिंग जितना खींचेगा, मान लो ये वाला चीज खींच गया तुम्हारा x1, दूसरा वाला स्प्रिंग भी उतना ही खिंचाव देगा, मतलब ये देगा x2। क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x, एंड डेफिनेटली yes. So here, as you are connected a block and having a pull here, so both the spring will have a equal amount of elongation. So I can write here x1 equal to x2 equal to x. I mean I will use x instead of your x1 and x2.
Okay, so again we will go for your spring force formula, and you know that your spring force formula is FSP equal to K into delta X, or else you can say K into X. Is it? And you can write here. हाँ, ओके। अभी थोड़ा फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। क्या यहाँ पे दोनों में स्प्रिंग फोर्स बराबर होगा? नहीं, ये पिछली बार की तरह केस नहीं। यहाँ पे दोनों स्प्रिंग में फोर्स बराबर नहीं होगा। यहाँ पे इसमें जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F1, इसमें जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F2, लेकिन दोनों को मिला के तुम्हारा जो नेट फोर्स आएगा वो बराबर हो जाएगा। आई मीन हियर आई कैन राइट F इक्वल टू F1 प्लस F2, ये दोनों की फोर्स को मिलाओगे तो ये नेट फोर्स के बराबर होगा। तो चलो थोड़ा फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे हम। अच्छा, एक के बदले क्या है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट K into X, और F1 का मतलब ये वाला स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, और X1 के बदले में डायरेक्ट X लिखूंगा क्योंकि ये तो X2 के बराबर है, और ये दूसरे वाले में लिखूंगा मैं K2 into X। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है तीनों साइड से तुम्हारा X कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो फाइनल तुम्हारा बचेगा ना फॉर्मूला वो बच जाएगा K इक्वल टू K1 प्लस K2। यहाँ पे तुम n नंबर्स ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, और जितना भी तुम्हें जोड़ना है जोड़ो और सीधा सीधा मिलाओ। यहाँ पे वो रेशियो वाले का टेंशन नहीं है, प्रोपोर्शन में यहाँ पे नहीं है। सो आराम से सीधा सीधा, ये वेरी सिंपल है, इसलिए हमारा टाइम बहुत बच गया पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करते करते। ओके, सो इसका मुझे नहीं लगता है कि न्यूमेरिकल हमें करना चाहिए, बहुत ईजी है। मान लो तुम्हें दो स्प्रिंग दे दिया, एक का है 20 और दूसरे का है 30। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों को सीरीज में मिलाओ। अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तो ज्यादा टाइम ही वेस्ट मत करना, उसको डायरेक्ट मिला देना, बोल देना कि 50। ओके, ये सीधा सीधा मिलेगा, ये पिछली बार की तरह नहीं है। तो सीरीज का फॉर्मूला थोड़ा क्रूशियल है जो कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और इसका सिंपल सा स्टेट। ओके, इसको नोट करो। हाँ।